Hello everyone. Good evening, dear listener. Welcome to the audiobook. I am your host cum speaker, Rajinder Singh. Name of the book Art Bless, compiled by Jugesh Singh Thakur, published by SGSH Publication or Kitab Writing Publication, Mumbai. This book is dedicated to my parents, heavenly sister, my all well wishers, and the co authors of this book. A tribute to Gurudev Ravindranath Tagore. First, a little thanks to the Almighty for the reason we are here today. We also thank every soul who helped us to bring this book to its fruition. The co-authors who have given their valuable contents are equally deserving for our deep gratitude. Without them, this book would have been a mere night's dream. We thank them for their patience and faith in us, for cooperating, supporting, and encouraging us at every step during making this anthology. We all we also like to thank them for participating so actively and happily. We thank to the readers who are reading this book, motivating us to create more of the amazing things. Further, we heartily thank our publishing team, SG Publications, without whom this would not have been possible. And at last, but never the least, we thank our parents who brought us into this world, raised us, tolerating us, and always supporting us. No matter what, without them, we are incomplete and homeless soul. This book, this poetry book, is divided into three sections. First, English. Second, Hindi. Third, Urdu. We are started with Hindi portion. Co-author Tanisha Srivastav is a young entrepreneur presenting Maverick Thoughts community as a founder. She grew up in Kanpur, Uttar Pradesh, and by professions, she is journalism student and working with different organizations. She is passionate writer, चंदा और मैं काफ़ी वक्त हुआ हमारी मुलाकात को। ज़िंदगी में कुछ पा लेने की होड़ में मैंने खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि मुझे याद भी नहीं आखिरी आखिरी बार कब आई थी तुम्हारे समक्ष दो पल सुकून के लेने। इस पूरे आसमां में तुम अनगिनत सितारों संग रहते हो। अनगिनत तारों में सब एक से एक बढ़कर हैं, एक खूबसूरत मुस्कुराहट लिए, पर फिर भी मुझे बाय सिर्फ तुम जानते हो। जब भी कभी मुझे महसूस हुआ अकेलापन, घबराहट, बेचैनी, रुदन, खुशी, मैंने अपनी छत को चुना एकांत के लिए, जहाँ मिले मुझे तुम। मुझे रात की शांति बहुत पसंद है, पर अंधेरे से डर लगता था। तुमने उससे भी मेरा मित्र बना दिया। चंदा, तुमने मुझे तेरे सामने बेफिक्र होकर सब साझा करने का हौसला दिया। बिन कुछ कहे भी जब भी बैठी तेरे सामने, तुमने मुझे सुकून पहुंचा दिया। जरूरी है क्यों इसने अंतर बनाकर सबको बांटने का सोचा। दोगला समाज। इस प्रतिशतात्मक समाज में क्यों हमने मांगा एक पुरुष से ही कठिन परीक्षण की उम्मीद और स्त्री का ही त्याग की मूर्ति हो जाना। हमेशा से लड़कों को ही जिम्मेदारी थमाई जाती है घर चलाने की। पैसे कमाने के लिए उन्हें भटकना पड़ता है दर बदर। हमेशा से लड़कियों से मांग की गई मन मारने की, एडजस्ट करने की, उन्हें चार दीवारी में रहने के लिए होना पड़ा मजबूर। आखिर क्यों समाज के इन दो खुले नियमों का मानना? क्या इसका जवाब कभी मिल पाएगा? Co-author Priya Kashyap. She belongs to Dildar Nagar, a town of district Gazipur,
उत्तर प्रदेश। शी इज़ नेचर फोटोग्राफर आल्सो। उसका प्यार झलकता है जब वह करीब आकर मेरी बालियों को हल्के से छू जाता है, तो उसका प्यार झलकता है। जाते जाते जब वह यूं पलटकर नजरों से बातें करता है, तो उसका प्यार झलकता है। शाम होते ही जब खिड़कियों से उसकी झलक को तरसने लगे ये मन, तब वो धीरे से आकर मुझे डरा देता है, तो उसका प्यार झलकता है। उसे फूल पसंद नहीं। वह कहता है कि फूलों की खुशबू वफादार नहीं होती, पर जब वो बगीचे से गुलाब तोड़कर मेरी जुल्फों में लगाता है, तो उसका प्यार झलकता है। लाल रंग उसे भाता नहीं है, पर मुझे लाल साड़ी में देखकर जब वह कानों के पीछे काला टिक्का लगाता है, तो उसका प्यार झलकता है। जो कभी चाय फीकी हो जाए तो वह जताता नहीं, सबके सामने मेरी गलतियों को अपना बनाता है, तो उसका प्यार झलकता है। को-ऑथर राजिंदर सिंह। He is completed BA from GDC Boys Adampur. He inspired to write the poem from his friend Jugesh Singh Thakur, and he is currently doing master in psychology from Central University of Haryana. एक गरीब बाप की कहानी। अपने घर के अनमोल रतन को दूसरों के घर का अनमोल रतन बनाया। एक गरीब बाप की कहानी। दूसरों के घर की खुशी बनाया। एक गरीब बाप की कहानी। अपने घर की दीवारों और उन पर लगी तस्वीरों को निखारता रहा। अपने घर की दीवारों और उन पर लगी तस्वीरों को निखारता रहा। एक गरीब बाप की कहानी। अपनी खुशियाँ दान देकर उनकी खुशियों की दुआ करता रहा। एक गरीब बाप की कहानी। स्कूल लाइफ। वर्षों बाद आज स्कूल के बाहर से गुजरा। स्कूल ने मध्यम आवाज में बोला, जरा मुझसे मिलते जाओ, आजकल दिखते नहीं हो। बड़ी हिम्मत करके स्कूल से नजरें मिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, जहाज तो बहुत आती है तेरी, पर अब हम अपनी जिंदगी के एक अलग ही पड़ाव में व्यस्त हैं। को-ऑथर अंजलि वर्मा। नेम अंजलि वर्मा। इसे लेखन कार्य और सामाजिक कार्य करने में बहुत रुचि है। साहित्य से बहुत प्रेम है। कविताएं लिखना पसंद है। और आगे बस इतना ही मैं अपनी लेखनी से ही अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। तोहफा। आज मैंने अपने तोहफे का बॉक्स निकाला, जिसे बड़े सलीके से मैंने संभाल के रखा था। आदत कहूँ या तोहफे के प्रति मेरा लगाव, मैंने अपना हर एक तोहफा संभाल के रखा है बड़े प्यार से। और जब ये तोहफा आपके प्यार का दिया हो, तो उसके प्रति प्यार और बढ़ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। मुझे बेहद प्यार है उन झुमकों से। ये झुमके मेरे प्यार की निशानी है। और स्वाभाविक है कि मैंने उनके टूट जाने के डर से उन्हें एक बॉक्स में बंद कर रख दिया, जबकि चाहिए ये था कि मैं उन्हें पहनती और उन्हें पहन के संवरती, पर मैंने चुना उन्हें महज संभाल के रखना। और आज जब मैंने उन्हें संभाला और लंबे अरसे के बाद, तो वो मुझे टूटे हुए मिले और मैं आहत हुई कि कैसे ये टूट सकते हैं। मैंने तो बहुत संभाल के बंद करके रखे थे, पर बार बार उन्हें देखते हुए मन में आते हुए विचारों से जूझते हुए समझ आया कि क्या हमारे रिश्ते भी यूं ही बिखर जाते हैं झुमकों की तरह, जब हम उन्हें महज संभालने के नाम पर रिश्तों के एहसासों को, जज्बातों को दिल दिमाग के किसी कोने में बंद कर रख देते हैं, जबकि झुमकों की तरह रिश्ता भी
वक्त मांगता है, जज्बातों की सार संभाल मांगता है, किसी बंद बॉक्स का कोना नहीं। क्यों हम रिश्तों को प्यार से, जज्बातों से, वक्त के साथ और नहीं संभाल लेते? क्यों उन्हें बंद कर रख देते हैं धीरे धीरे टूटने के लिए? तो अब वक्त रखते रिश्तों को भी वक्त दिया जाए। उन्हें महज संभाल नहीं रखते हैं और उन्हें संवारते हैं। को-ऑथर अंकिता त्रिवेदी। अंकिता त्रिवेदी पंछी जो कि इंदौर की निवासी हैं। पेशे में ये एक अंग्रेजी की अध्यापिका हैं। इनकी चंचलता ही इनकी पहचान है और ये बिल्कुल अपने नाम पंछी की तरह उड़ना चाहती है। मेरा यार मेरे शहर सा है, खिलखिलाती सुहानी पहर सा है। मेरा यार मेरे शहर सा है, छप्पन के तीखे पोहे सा मिजाज है उसका, और गुस्से में तो बिल्कुल जहर सा है। मेरा यार मेरे शहर सा है, रहता है बिल्कुल टी सा टिप टॉप, और फैशन सेंस तो अपोलो टावर सा है। लिग के मैगी बाजिए सा टेस्टी, पर मुझ जैसी राजबाड़ा पर पागल सा है। मेरा यार मेरे शहर सा है, क्रिसेंट पार्क जैसे मस्ती भरा, मेघदूत की तरह चंचल सा है। सुपर कॉरिडोर सा सबसे सुंदर, उज्जैन के महाकाल जैसे पवित्र सा है। मेरा यार मेरे शहर सा है, पाटनीपुरा की किसी लेन सा व्यस्त, राला मंडल की मत मस्त हवा सा है। वो सराफा सा चटपटा, मैं जलेबी सी मीठी, पर इस जलेबी बिन वो पोहा अधूरा सा है। मेरा यार मेरे शहर सा है। को-ऑथर तुषार पांडे। तुषार 23 years old from Lucknow. He loved to write short story, poetries, articles, etc. फ्रेब। हम हैं जो फ्रेबों में उलझाए गए हैं, बेवजह उकसाए गए हैं, हर फैसलों पे गलत ठहराए गए हैं। हम हर उम्र ने खिलौनों से बहलाए गए हैं, तमाम हादसों के बाद इस मोड़ पे लाए गए हैं। खुशक मिट्टी से यूं कहा जाए पत्थर बनाए गए हैं। हम हैं जो फ़रेबों में उलझाए गए हैं। उसका जैसा शख्स वो अब साथ आसमानों सा चलता है, कभी सिर्फ ख्वाबों में मिलता था। हर शख्स खुद गर्ज है जहाँ, फिर वो कैसे मेरा हमसाया बन जाता है। उसके जैसा शख्स तो सिर्फ किताबों में पाया जाता है। को-ऑथर समृति मिश्रा। शी इज़ फ्रॉम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। शी इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड अ राइटर बाय पैशन. She loves to explore her thoughts by penning. यादें कभी हंसती तो कभी रुला जाती हैं, ये यादें भी बहुत सताती हैं। बुरे पलों से हमें मजबूत तो अच्छे पलों से आंखें नम करा जाती हैं। बैठे बैठे किसी और दौर तक ले जाती तो कभी अपने परायों की पहचान करा जाती हैं। ये यादें ही तो हैं जो ताउम्र साथ निभाती हैं। एक कोशिश। थकी जरूर हूँ पर हारी नहीं, नारी हूँ किसी की जिम्मेदारी नहीं। वक्त कठिन होगा और डगर नहीं, पर किसी के सोच की मारी नहीं। बहुत सह लिया बहुत कह लिया, करने की फिर से मेरी आलोचना, अब किसी की वारी नहीं। कोशिश करूँगी अपने लिए, अब मैं खुद ही लड़ूंगी। दूसरों के लिए होया हुआ अपना अस्तित्व फिर से पाने अब मैं तो चल पड़ी। पोंछ के अपने सारे आंसू, हक की खुशियों के लिए हूँ खड़ी। अब ना टूटूंगी ना बिखरूंगी और ना सहूंगी किसी के भी सितम। हाँ,
नारी जरूर हूँ पर किसी की जिम्मेदारी नहीं। को-ऑथर महक जैन। इनका जन्म 12 अगस्त 2004 को हरियाणा के एक कस्बे टोहाना में हुआ। ये एक छात्रा हैं एवं अनेक गतिविधियों में रुचि रखती हैं। कला हमारी पहचान। कला से कला को निखारा बहुत है, कला ने जीवन को संवारा बहुत है। हर एक कला की अपनी पहचान है, विभिन्न कला विभिन्न देशों की शान है। कला ने दी है राहत कलाकारों को, कला ने दी है रौनक बाजारों को। हर कोई विभिन्न कला में लगा है, कला से सारा संसार सजा है। प्रकृति में कलाकारी, भवनों में कलाकारी, हर एक कण कलाकारी से भरा है। कला के ही सहारे बहुत से कलाकारों का दरबार चला है। लेखन कला, नृत्य कला, मूर्ति कला, नाट्य कला इत्यादि सभी देशों को संवार रही है। कलाकारों कदम बढ़ाओ, कलाकारियाँ तुम्हें पुकार रही है। कला ही है आस्था, कला ही है भगवान, कला के ही संगम से ये पूरा हिंदुस्तान है। लघु और उच्च स्तर पर हर क्षेत्र में कला का खेल है। कलाकारी ही तो है ये हिंदुस्तान, अद्भुत कलाओं का मेल है। चलो देते हैं मान कला को, करते ईश्वर से भक्ति है। कला ही जीवन का आधार है, कला ही प्राथमिक शक्ति है। हमारी कलम सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो चलती जाए, हस्ताक्षर बने तो कागजी कार्रवाई कर जाए। वो दार जो हर एक लेखक की शान है, हाँ वो कलम ही है जिस पर हमें अभिमान है। जिसे लिखकर पहचान मिली, लेखक रूप में शान मिली, जिसे रचे गए इतिहास में हम सभी लेखकों की यो इकलौती पहचान है। यो उतार दे बागों को सुंदर रचनाओं में, जो डाल दे जान सभी कलाओं में। जिसको सभी ने शीश नवाया, हर लेखक चाहे उसी की छाया। जो मनगढ़ंत को यथार्थ बनाए, जो हर लेखक की राहत बन जाए। जिसने बदला इतिहास है वो कलम बहुत ही खास है। नमन करे हम पहचान को हमारी, जिसने जीवन को हमारे निखारा है। इसी की मेहरबानी वे तकदीर को हमारी निखारा है। कलम रुके तो जैसे प्राण निकले, इतना महत्वपूर्ण इसका स्थान है। हर लेखक की पहचान है ये, इसके कोने से पूर्ण हुआ हिंदुस्तान है। को-ऑथर नीलोफर तौसीफ। नीलोफर तौसीफ hails from Bihar Sharif, Nalanda, but staying in Mumbai. She has done MCA and MBA, team leader by profession and writer by passion. She loves penning down her thoughts, emotions in her writing. कीमत मटके की। मटके की कीमत क्या खूब लगाई, बच्चे ने तेरी खातिर जान गवाई। मिट्टी को खुद पे इतना गुरूर आया, माटी के पुतले ने माटी में मिलाया। नीच जाति होना भी एक अभिशाप, उच्च में जन्म लेने से चढ़ता नहीं पाप। बात बात बोलकर कोई मर जाए, घोड़े पे चढ़े कोई तो जान गवाए। उच्च जाति ही करे स्वयं पे अभिमान, बलात्कारी को भी मिलता है सम्मान। कब तक उच्च नीच काले गोरे होंगे, इंसानियत की नींव ही क्या अधूरे होंगे। कीमत प्यास की कोई कैसे लगाता है, मृत्यु शैया पे नीच जाति बड़ा काम आता है। कर्म से ही क्यों नहीं आंका जाता है, पूर्ण है एक आत्मा एक, फिर जाति कौन बनाता है। मटका भी आज खुद पे शर्मसार हुआ, प्यास बुझा ना पाया यही सोच गुनहगार हुआ। बूंद बूंद की कीमत आज समझ आई, मटके तेरी कीमत जान देकर चुकाई। मटके तेरी कीमत जान देकर चुकाई।
कफन चोर। अचानक होने लगा चारों तरफ एक शोर, पकड़ो पकड़ो देखो भागा कफन चोर। कुछ ही दूर दौड़ा था कि पकड़ा गया, सामाजिक दूरदरों से ही टकरा गया। हर किसी ने जी भर कर गुस्सा मासूम पे निकाला, मरा तो नहीं पर समझो जैसे मार ही डाला। लात गुस्सा मुक्का से जी भर कर बरसात हुई, पहले मुक्का लात फिर थोड़ी बात हुई। दो बच्चों की ठिठुरन देख न पाया, ना समझा था वो कफन, ना समझ था वो कफन उठा लाया। लहू लुहान होकर भी दोहराता रहा, हकीकत से रूबरू कराता रहा। गुनहगार हूँ तो बेशक सजा दीजिए, जिंदा से ज़्यादा कफन की ज़रूरत है, मुर्दों को तो उड़ा दीजिए। जिंदा से ज़्यादा कफन की ज़रूरत है, मुर्दों को तो उड़ा दीजिए। को ऑथर दीपिका अग्रवाल काव्य। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा की स्थायी निवासी हैं। ये 3 वर्षों से लिख रही हैं। अब तक लगभग इनकी 10 कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आँखें। उस खुदा ने बड़ी सोच समझ कर बनाई है आँखें, इस कुदरत की हर एक मौज को दिखाती है ये आँखें। सुख दुख सबका सामना करती है ये आँखें, दूसरों से प्यार मिले बस यही तमन्ना करती है ये आँखें। बिना जुबा खोले सब बोलती है ये, दिल में क्या चल रहा है सब राज बोलती है ये। प्रायों में ढूंढती है अपनों को ये, कभी बसाती सपनों को खुद में ये। किसी के साथ जीने मरने के देखती हैं ये सपने, गमगीन हो जाती हैं जब दूर चले जाते हैं अपने। किसी अपनों के लिए साफ दिखता है इनमें प्यार, जुआ करे इनकार फिर भी दिखता है इजहार इनमें। जिंदगी के छिपे रहते हैं इनमें सभी पल, दिन चाहे आज का हो जा आने वाला कल। अद्भुत शक्ति के प्रतीक माँ के सब रूप। नवरात्रों में हर कोई करता है देवी माँ की पूजा। माँ ये सिखाती है कि हर घर की नारी भी है उस देवी माँ का ही रूप दूजा। होता है इन 9 दिनों में माता रानी का घर में वास, महक उड़ता है घर का आंगन, मन में उठती है भक्ति की आस। बड़े ही मोहक लगते हैं माता रानी के 9 रूप, माता और शक्ति का प्रतीक है माता रानी का हर एक स्वरूप। घर की छोटी छोटी कन्याओं में भी माता रानी समाई है, धरती पर बेटी के रूप में शक्ति स्वरूपा माँ उतर आई है। आओ इन नवरात्रों में नारी के प्रति कुछ विशेष भाव जगाए, आदर प्रेम और ममता से नारी को भी जीवन महकाए। कोआथर नीतू चोपड़ा। किरण चोपड़ा की बेटी नीतू चोपड़ा है। वह मध्य प्रदेश जबलपुर की रहने वाली है। वह 26 साल की है। वह एक अच्छी छात्रा है क्योंकि उसने स्कूल के साथ साथ कॉलेज स्तर पर भी अच्छा प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। शीर्षक शादी। शादी का बंधन 7 फेरों का मोहताज नहीं होता, ये बंधन है प्रेम और विश्वास का। ये बंधन है 2 आत्माओं का, श्रुति से प्रसाद तक का ये बंधन है आराधना का। 2 आत्माओं का स्नेह से अभिनंदन है, ये ब्रह्मांड सारा ये रिश्ता है प्रेम और विश्वास वाला। यहाँ रूप का मिलन रूह से है, यहाँ आत्माओं का मिलन लिखित है। ये पवित्रता का स्वरूप बंधन है, शादी ही 2 आत्माओं का मिलन का सुनहरा मार्ग है। कोऑथर मनीषा शर्मा। शी इज मनीषा शर्मा, a bioinformatics student in Germany. Being at a long distance from her home,
made her realize about her passion towards words, and that's when she started writing. She writes to inspire and gets even inspired by writing, as she says, writing makes me feel alive. She has already been part of an anthology called AL. To know more about Nisha, do follow her on Instagram. तू शायद तू शायद सपना था मेरा, जो आंखें खुलते ही गायब हो गया। तू शायद अपना था मेरा, जो बिन कहे सो सब समझ गया। तू शायद हास था मेरा, जो जाते जाते सुख चैन भी ले गया मेरा। तू शायद ख्वाब था मेरा, जो सोते हुए जगा गया। तू शायद प्यार था मेरा, जो दिल टूटने का एहसास करवा गया। तू शायद वफा थी मेरी, जो ना जाने क्यों गदरी कर गई। तू शायद सबक था मेरा, जो ज़िंदगी के असल मायने सिखा गया। Co-author Satwik Mishra. Satwik Mishra hails from Rambagh, Agra city of Uttar Pradesh. He has a deep-seated beliefs in writing. खेलूंगी कभी न होली, खेलूंगी कभी न होली, उससे यो ना हमजोली। वह आँख कुछ नहीं बोली थी, ये हुई शाम की तोली। ऐसी भी रही ठठोली, गाढ़े रेशम की चोली। अपने से अपनी दोलो, अपना घूंघट तुम खोलो। अपनी ही बात बोलो, मैं बसी पराई टोली। जिनसे होगा कुछ नाता, उनसे रह लेगा माथा। उनसे मैं जोड़ू जाता, मैं मोल दूसरी मोली। खेलूंगी कभी न होली, उससे जो ना हमजोली। एक बार कहो तुम मेरी हो। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फास लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो। जैसा जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। जब सावन बादल छाए हो, जब फागुन फूल खिलाए हो, जब चंदा रूप लुटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो। जहाँ शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो। हाँ, दिल का दामन फैला है, क्यों गोरी का दिल मैला है। हम कब तक पीत के धोखे में, तुम कब तक दूर जरोखे में। कब दीद से दिल की सेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो। क्या झगड़ा सूद सहा, क्या झगड़ा सूद खसारे का। ये काज नहीं बाजारे का। सब सोना रूप पा ले जाए, सब दुनिया सब कुछ ले जाए। तुम एक मुझे बहुत तेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। एक बार कहो तुम मेरी हो। Co-author name Abhijot Kaur. A student with a passion of writing and photography. जिंदगी की हकीकत। हम पिछले कुछ दिनों से किसी कारण हुई दोस्ती को पूरी उम्र साथ निभाने वाली दोस्ती मान लेते हैं और उन्हीं 4 दिनों की दोस्ती की परवाह भी खूब करते हैं। दिन में कई दफ़ा तो उनका हाल पूछते हैं। दिन नहीं भरता, दिल नहीं भरता, कभी घंटों भर बात करके भी दोस्त के एक बार बुलाने पर जल्द ही वहाँ हाजिर हो जाते हैं। वो तो तुम्हारे माँ बाप हैं साहब, कैसे एक ही पल में रिश्ता तोड़ने की बात सोच सकते हो तुम। वह माँ कैसी तुम्हारी फिक्र ना करे, जो तुम्हें तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले ही तैयारियां करना शुरू कर देती है। हमारा हाल कभी कभार ही पूछती है वो, चेहरा देखकर ही सब समझ जाती है वो। पापा से डांट हमें पिटती है, पर लगती माँ के दिल को है। डांट भी माँ बाप और गुरु की ही बर्दाश्त होती है। बाकी के कोई कुछ कहने भी लगे तो यही बात मुंह पर आती है कि तुम होते कौन हो हाथ लगाने वाले।
दोस्त को मिलने में कुछ देर हो जाए तो कितनी बातें सुना देते हैं। माँ को तो मालूम भी नहीं होता कि बच्चे कब घर आ जाएंगे, तब भी वो घंटों सब्र करती है। दोस्त अगर पैर हो तो माँ टांग है। पैरों के बिना हम आगे तो बढ़ सकते हैं, पर बिना टांगों के चलना जरा मुश्किल महसूस होगा। कुछ पल बैठकर परिवार के साथ भी गुफ्तगू करें। देखिए उनके चेहरे कैसे खिले हुए पाएंगे। ऐसे कुछ पलों को कर लेना तस्वीरों में कैद, क्योंकि ऐसे कीमती पल ना जाने फिर कब आएंगे। दोस्त जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है कौन जाने कि कल वह हो या ना हो। माँ अगर कल भी हुई तो दुआएं तो हर दम साथ है ना। माँ तो माँ है, हर पल करती प्यार और सदा देती आशीर्वाद है। Co-author Balram Mandavia. His name is Balram Mandavia. He likes to write poems to express his feelings. He likes to convey his message through the poems. He believes words have the ability to express everything. भारत की परंपराएं। लोग चाहे किसी देश से क्यों ना आए हो, हम उनका सम्मान करते हैं। हमसे जो भी बड़ी उम्र के हैं हम उनका आदर सम्मान करते हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत सी परंपराएं और रिवाज हैं, और इसलिए ही तो हम अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। कुछ पंक्तियां अर्ज करना चाहूँगा। हर सुबह उठ के बड़ों के पैर छूते हैं, खुशी बड़ी हो जाए छोटी, हम सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। और बस यही कहना चाहूँगा, हम जो परंपराएं निभाते हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन हम में परंपराएं और रिवाज के मार्ग दिखाने वाले तो हमारे माँ बाप और हमारे बुजुर्ग होते हैं। बस एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, दुनिया वाले तो दुनियादारी सिखाएंगे, सफलता हासिल करने के लिए तो गलत रास्ता भी अपनाएंगे। बस इतना याद रखना, असली कमाई तो परंपराएं और रिवाज हैं। अगर यही नहीं सीख पाए तो सफलता हासिल करके भी क्या ही कमाएंगे। धन्यवाद। Compiler's note: Jugri Singh Thakur is 23 years old, writer, blogger, author and poet, born in 20th century from the valleys of Pogal and Pakistan, district Ramban, Jammu and Kashmir. He is the author of book The Craved Emotions, The Unleashed Pearl, The Ripples of Sorrow. He has been honored at various national and state level stages. Vajra World Record holder, Kalam Ratan Award. He has co-authored more than 30 anthologies since his inception in this staggering field. You can also relish the essence of his writing in form of research papers, articles and poems, which are being published at various local, national level newspapers and magazines like Delhi Excelsior, State Times, Yuva Zindagi, Vijay Darpan, Times, Amar Ujala, etc. आखिर ऐसी दुनिया कहाँ जाती है? छू गया दिल को कुछ ऐसा तार था, बारिश बनके शाया कुछ ऐसा खुमार था, थी रौनके जहाँ दो बाल, आखिर ऐसी दुनिया कहाँ जाती है? बादलों का खेल कुछ वक्त था, अधूरी हसरतें जमाना दंग सा था, सांसें थम सी जाती थी थक हार कर, आखिर ऐसी दुनिया कहाँ जाती है? देख आंखों को उजाला कुछ ऐसा था, चेहरों पर रौनक और रंगत सा था, थे चुने जाते जख्मों के फूल जहाँ, आखिर ऐसी दुनिया कहाँ जाती है? मौसमों की कशिश ऐसी रह गुजर था जमाना, सावन भी जुमता फिरा आ जाता था, गूंजती थी बोलियां ऊंची जहां, आखिर ऐसी दुनिया
कहाँ जाती है। भीगा सावन घटाएं लेकर आता था, बरसती बारिशों में तरसता आसमां भी था। सुनाया करते थे हीर रांझा जैसे किस्से जहां, आखिर ऐसी दुनिया कहाँ जाती है। धन्यवाद।